मेरा नाम पर्ल है, ये मेरा हस्बैंड टेरी है और ये हमारा छोटा सा बच्चा रफाइल है। So come, let's sing this song, this beautiful song. It says, there is no God like you, Jehovah. Come, let's enjoy this song. Bow our heads together and worship our Lord by saying together that you are no other God. There's no other God like Jehovah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for this time that you have given us, Lord. We thank you, Lord, for all that you have done in our lives. And we thank you, Lord, for this time that you have given each and every one of us the beautiful gift of life, oh Father God. Yes, God, you alone are worthy. You alone deserve all the glory and praise and honor, Lord Father God. Lord, as we come before you, Lord, in this time of worship, Lord, we ask you and we pray, Lord, that you will speak to us in this Bible camp that we have for the dear children who are watching us, Lord. Lord, let your mighty Holy Spirit, Lord, sweep every heart watching over, Lord, watching this video, Father God. Let their hearts be touched and blessed in the name of Jesus. And let their families, oh Father God, be ever green in your courts, oh Father God. That they will serve you and worship you, Lord, in spirit and in truth. I pray this prayer in the most holy and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. थैंक यू वेरी मच टेरी एंड फैमिली। बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की सेवा पूरे परिवार मिलकर करना चाहिए। मेरे घर के अंदर एक रूल है जहां पर हम दिन में एक बार एटलीस्ट आते हैं, मिलते हैं और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर से
प्रार्थना करते हैं। हमारे घर के अंदर एक वेदी, एक फैमिली ऑल्टर होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हमारी सारी चिंता, हमारा सारा दर्द और हमारा सारा समस्या हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। अब हम जो है स्तुति आराधना में जाएंगे। पिछले 4 दिनों में आप लोगों ने बहुत सारे नए गाने सीखे हैं। आज हम वो सारे गाने को दोहराएंगे और उसमें से सीखेंगे। कुछ बच्चे जो है नए आए हैं, पहली बार हम सारे साथ में जुड़ रहे हैं, वो सीख सकते हैं और गाना गा सकते हैं। He's my rock, my sword, my shield. He's the wind in the middle of the field. He's the lily of the valley, bright and morning stars. No matter what they say, I bend on my knees and pray. I will sing until the time when Jesus comes. He's my hope, hope, hope. He's the will in the middle of the field. He's the lily of the valley, bright and morning stars. No matter what they say, I bend on my knees and pray. I will sing until the time when Jesus comes. He's my hope, hope, hope. He's the lily of the valley, bright and morning stars. No matter what they say, I bend on my knees and pray. I will sing until the time when Jesus comes. He's my hope, hope, hope. He's my He's the bright and morning star. No matter what they say, I bend on my knees and pray. I will sing until the time when Jesus comes. He's my hope, hope, hope. He's my He's the bling, 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 bling. No matter what they say, I bend on my knees and pray. I will sing until the time when Jesus comes. I will sing until the time when Jesus comes. I will sing until the time when Jesus comes. ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने यीशु के लिए।
हंसी हंसी खुशी 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 हम सब सिर को घुमाए हंसी 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 खुशी 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 सबको जय मस्ती हंसी ला 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 खुशी हंसी खुशी गाओ हंसी हो खुशी हंसी खुशी गाओ हंसी 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 खुशी 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 हम सब सिर को घुमाए हंसी 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 खुशी 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 दोस्तों को दिल से प्यार हंसी ला 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 खुशी हंसी खुशी गाओ हंसी हो खुशी हंसी खुशी गाओ हंसी 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 खुशी 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 हम सब सिर को घुमाए हंसी 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 खुशी 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 दोस्तों को प्यार का जपी हंसी हो खुशी हंसी खुशी गाओ हंसी ला 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 खुशी हंसी खुशी गाओ हंसी 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 खुशी 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 हम सब सिर को घुमाए हंसी 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 खुशी 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 दोस्तों को गुदगुदी हंसी ला 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 खुशी हंसी खुशी गाओ हंसी हो खुशी हंसी खुशी गाओ यीशु दिल में आने से पहले गंदी बातें थी दिल में ओहो आहा यीशु को दिल में मैंने लिया उसके प्यार से मैं मर गया उसका बेटा मैं बना उसकी बेटी मैं बनी स्वर्ग में मैंने जग पाली ओहो आहा ओहो आहा यीशु दिल में आने से पहले गंदी बातें थी दिल में ओहो आहा यीशु दिल में आने से पहले गंदी बातें थी दिल में ओहो आहा यीशु को दिल में मैंने लिया उसके प्यार से मैं मर गया उसका बेटा मैं बना उसकी बेटी मैं बनी स्वर्ग में मैंने जग पाली ओहो आहा ओहो आहा यीशु को दिल में मैंने लिया उसके प्यार से मैं मर गया उसका बेटा मैं बना उसकी बेटी मैं बनी स्वर्ग में मैंने जग पाली ओहो आहा ओहो आहा यीशु दिल में आने से पहले गंदी बातें थी दिल में हेलो सब लोग, मेरा नाम आशीष है। आपका इस समय में बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको वर्शिप में लीड करूंगा। और आज जो हम गाना गाने वाले हैं उसका नाम है तुम सा कोई नहीं। तो आइए अपने दिलों को तैयार करें और प्रभु की स्तुति करें।
कमी है, तेरे ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू है मंजिल रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरे ही नाम जिंदगी। अब है पूरा तुम सा कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच आशीष। परमेश्वर आपको आशीष करे। अब समय है बाइबल टीचिंग का और आज हमारे बीच है सिस्टर हेमलता। सिस्टर हेमलता एक स्कूल की प्रिंसिपल है, तो बच्चों ध्यान से सुनना, नहीं तो प्रिंसिपल मुर्गा बनाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन फिर एक बार आपके सामने मैं स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी इसके पहले जो सेशन हुआ आपने उसका आनंद लिया। आइए हम आज स्टोरी में जाएंगे। स्टोरी में जाने के पहले मैं इन 4 दिनों में हमने परमेश्वर के नामों के बारे में सीखा था। आइए फिर एक बार उस नाम को हम याद करेंगे और दोहराएंगे। हमने पहले दिन सीखा था कि यहोवा शम्मा, इसका अर्थ है यहोवा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, यहोवा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। और हमने दूसरे दिन यानी डे 2 में हमने सीखा था यहोवा रोही, मतलब परमेश्वर मेरा चरवाहा, मुझे चराने वाला, मुझे सिखाने वाला। और हम तीसरे दिन हमने सीखा था कि यहोवा राफा, मतलब परमेश्वर मेरा हीलर, मतलब परमेश्वर मुझे चंगाई देने वाला, परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला। और हम चौथे दिन में हमने देखा था कि यहोवा ईरे, मतलब लॉर्ड इज माय प्रोवाइडर, मतलब परमेश्वर मेरा अन्नदाता, मेरा पालन पोषण करने वाला, मेरा प्रबंधक करने वाला। इन 4 दिनों में हमने अलग अलग परमेश्वर के नामों को हमने सीखा है और हमने समझा है, हमने जाना है। तो आज मैं फिर एक बार आपके सामने आई हूँ, आज एक परमेश्वर का नाम लेकर, और वो नाम है यहोवा निसी। यहोवा निसी का अर्थ है लॉर्ड इज आवर बैनर, यानी परमेश्वर मेरा झंडा, मतलब वो मेरा ध्वज है, वो मेरा रक्षक है। तो आइए बाइबल में इस यहोवा निसी के बारे में, इस परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, जो हमारा ध्वज है, वो हमें क्या सिखाती है। तो बाइबल में एक स्टोरी को हम लेते हैं। हम 2 मनुष्य के बारे में आपको बताएंगे और उसमें से उनका नाम है, पहला पौलुस और दूसरा सिलास के बारे में। ये जो 2 व्यक्ति थे ये यीशु मसीह के विश्वास योग्य शिष्य थे। यीशु मसीह उनका गुरु था और वो उनके शिष्य थे। हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में हर शहर जाते थे और लोगों को, जो वहाँ के लोग रहते थे, उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते थे। ऐसे ही वो सिटी मतलब शहर जाते जाते
उन्होंने एक सिटी में प्रवेश किया और उस सिटी का नाम, उस शहर का नाम था फिलिपी सिटी करके। और जब वहाँ पे उन्होंने प्रवेश किया तो वहाँ पर भी उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। और जब वो बता रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जो बहुत पीड़ित थी, मतलब वो सामने से अच्छी दिख रही थी लेकिन अंदर से वो दुष्टात्मा से पीड़ित थी। दुष्टात्मा मतलब बुरी आत्मा से वो पीड़ित थी। और वो जो लड़की है वो क्या करती थी, उसके मालिक के लिए लोगों को आने वाली भविष्यवाणी वो करती थी और लोगों से वो पैसा कमाती थी और अपने मालिक को देती थी। और ये ऐसे करते करते जब उसने पौलुस और सिलास को देखा तो उनके पीछे 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 वो चिल्लाते चिल्लाते जाती थी। ऐसे एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये बार बार होने लगा। और पौलुस ने देखा और उससे बहुत दुख हुआ और दुखी के मारे पौलुस ने उसे पीछे मुड़कर एक दिन देखा और उसने कहा, उस लड़की के अंदर जो बुरी आत्मा थी, जो भावी आत्मा थी, उसको उन्हें आज्ञा दिया। उसने कहा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा करता हूँ कि इसी वक्त इसके अंदर से निकल कर चली जा। और हम देखते हैं मेरे प्यारों बच्चों, वो जो भावी आत्मा उस बच्चे के अंदर थी, उस लड़की के अंदर थी, वो निकल कर बाहर आ गई और वो लड़की उधर ही क्या हो गई, बेहोश होके गिर गई। और जब थोड़े समय के बाद वो उठी तो उसने अपने आप को हल्का महसूस किया। उसको लगा कि मेरे अंदर जो भारीपन था वो मुझसे निकल गया और वो उस व्यक्ति की, जो उसके मालिक की जो कमाओ का जरिया था, वो खो गया। और इस बात को जब उसके मालिक ने रियलाइज किया, ये जाना, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने क्या किया, उसने पौलुस और सिलास को दोनों को पकड़कर उसने लोगों के सामने जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे जाके खड़ा किया और उस सिटी का अधिकारी को उसने बुलाया और कहा कि देखो ये अधिकारी कि ये क्या कर रहे हैं करके, ये लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे योग्य में सही नहीं है, जो हमारे लिए ये बात गलत है। ये लोगों को कुछ गलत शिक्षा दे रहे हैं, कुछ गलत बातें बता रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, उनके चुंगल में फंसते जा रहे हैं। ये सुनकर लोगों ने भी क्या किया, उनका समर्थन किया और पौलुस और सिलास को उन्होंने पकड़ लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी ने पौलुस और सिलास को अपने पक्ष में कुछ बातें रखने के लिए मौका ही नहीं दिया और उन्हें आज्ञा किया कि इनके कपड़े निकाल दो और इन्हें बहुत मारो और बहुत मार के क्या करो, इन्हें बंदी गृह में डालो। मेरे प्यारे बच्चे, हम देखते हैं यहाँ पे कि पौल और सिलास जो है ये परमेश्वर के शिष्य थे और उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे के अंदर से वो जो परेशान कर रही थी उस आत्मा को, उसके अंदर से यीशु मसीह के नाम से निकाल दिया। लेकिन क्या हुआ, जो मालिक को जो पैसा, जो कमाई मिल रहा था, वो कमाई रुक गई और वो कमाई रुकने के कारण उसको गुस्सा आया और वो गुस्से से उसने क्या किया, इनके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाए। मेरे बच्चों, आज हर एक के जीवन में यही होता है। हम देखते हैं कि अभी हम आपको जो सिखा रहे हैं, है ना, हर एक के जीवन में अलग अलग तकलीफें आती हैं, है ना। हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास को उन लोग को जेल में डालते हैं। अब ये जेल क्या है, हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। हम क्या करते हैं, रोज हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम मस्ती मजाक करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम टीचर की बात कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं। हम घर पर आते हैं, अपने जितने अपने मित्र हैं, जितने अपने दोस्त हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, है ना। हम अपने बाहर की चीज़ों को हम दिखाते हैं, लेकिन जो अंदर है उसे हम दिखा नहीं पाते, है ना। हो सकता है कभी ना कभी आपके जीवन में भी ऐसी बातें हुई हैं, जो बातें इट्स नॉट फेयर, जो सही नहीं था, लेकिन लोगों ने आपके साथ भी ऐसे बातें की होगी। उदाहरण से मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मानो कि आपने कुछ किया नहीं, लेकिन लोगों ने आपके ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगाया और जो वो सही नहीं था। तो हम देखते हैं कि लोगों का काम कैसे होता है कि अभी मानो कि आपके बारे में या मेरे बारे में किसी ने बुरी बात बोली, तो ये गॉसिप होती है, मतलब अफवाहें फैलती जाती है और ये अफवाहें झूठी होती है। तो हमें कभी कभी क्या होता है, दुख होता है और उस दुख को हम कभी जाहिर नहीं कर पाते, है ना। और वो दुख
कभी हमारे अंदर की ज़िंदगी में कब वो दीवार बन जाता है, कब वो जेल बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। बहुत तरीके की वो फीलिंग हो सकती है। या तो वो हर्ट फीलिंग होगी, जिससे जिनकी बातों को सुन के हमें बुरा लगा होगा, या हमें गुस्सा आया होगा। हो सकता है वो गुस्से का जेल हमारे अंदर होगा। हो सकता है कि हमें बदला लेने का भाव आया होगा कि जरूर मैं इस व्यक्ति से बदला लूँगा। हो सकता है कि वो बदले की भावना हमारे लिए जेल है। मेरे बच्चों, हर अलग अलग तरीके से आज हर एक लोग एक अपने अंदर एक जेल बनाकर बैठे हैं। कोई बहुत सोचता है, वो सोच उसका दीवार बन जाता है, वो सोच उसका जेल खाना बन जाता है। कुछ लोग बदले की भावना का जेल, जिस तरह मैंने कहा, वो लेके बैठते हैं। कुछ लोग गुस्से की भावना को लेके बैठते हैं। कुछ लोग नफरत की भावना को लेके बैठते हैं। कुछ लोग एकदम, उनको एक दिन में दुख होता है, वो दुख, वो हर्ट है ना, वो लेके बैठते हैं। हम देखते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये चार सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई होगी, है ना। मानो कि हो सकता है कि हम जो हमारे जो पिताजी हैं वो पियक्कड़ होंगे और पी के आते हैं और बिना कारण हमें कभी ना कभी हमें लेके मारते हैं पकड़ के, बिना किसी वजह का। हो सकता है वो हमारे लिए जेल है। हम सोचते हैं कि कब हम इससे बाहर निकले। तो मेरे प्यारों बच्चों, इससे बाहर निकलने के लिए हम देखते हैं पौलुस और सिलास ने क्या किया। क्या वो अपने आप पर एकदम दया दिखाने लगे, या उन्हें ऐसा लगा कि ये सही नहीं हुआ, इट्स नॉट फेयर, हमने तो कुछ किया नहीं, हमने कुछ गलत काम किए नहीं, फिर भी हमें इस जेल में डाला गया। ऐसा क्यों किया? क्या उनके अंदर गुस्सा आई? क्या उन्होंने ये सोचा कि मैं बाहर निकलते जितनों ने मुझे अंदर डाला इस जेल में, या मुझे पकड़वाया या मुझे मारा, मैं उसे और मारूंगा? मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने ये सब बातें नहीं सोची। उन्हें पता है कि अगर वो ये बातें सोचेंगे तो वो दोबारा जेल में जाएंगे, और वो जो जेल होगी वो दो तरीके का जेल होगी। एक तो बाहर से भी जेल और एक अंदर से जेल। अंदर से जेल मतलब उनके सोच में, उनके विचार में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन बातों को नहीं सोचा, उल्टा उन्होंने ये किया। उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये जो लड़ाई है ये शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध है, ये एक स्पिरिचुअल वारफेयर है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि आए हम इस स्पिरिचुअल वारफेयर को तोड़ेंगे। और वो किस तरह तोड़ेंगे? हम प्रभु के पास जाएंगे, हम उनसे बातें करेंगे, परमेश्वर हमें रास्ता निकालेगा। पता है उन्होंने क्या किया मेरे बच्चों? उन्होंने अपना जो प्रॉब्लम उनके सामने था, उस प्रॉब्लम को हटाकर उन्होंने अपनी नज़र उस परमेश्वर की, उस यहोवा निसी की ओर लगाई, जो कहता है यहोवा निसी, यानी वो मेरा ध्वज, वो मेरा झंडा, वो मेरा रक्षक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की स्तुति आराधना करना शुरू किया। अब यहाँ पे जेल के अंदर जब उन लोग ये स्तुति आराधना कर रहे थे, तो बाकी जो जेल में लोग थे वो अचंभित हुए। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें पता है कि जितने लोग जेल में आते हैं उनके अंदर एक बदला, एक गुस्सा, एक नफरत होता है। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने पौल और सिलास को देखा तो ये पूरा उनके अपोजिट, उनका विरोध में था। और जेलर भी उनके स्तुति और आराधना को, उनके गाने को वो सुन रहा था। वो परमेश्वर की ओर अपने गीत को गा रहे थे और उन्हें एकदम जंजीरों से बांधा गया था। और हम देखते हैं कि जब रात में जब उन्होंने प्रभु की स्तुति की, प्रभु के गीत गाए, तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक बड़े कार्य को किया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो एटीट्यूड सही रखा। कि क्या सही रखा? कि उन्होंने अपना पूरा लक्ष्य उस परमेश्वर की ओर रखा। उन्होंने हालत के ऊपर अपनी परेशानी प्रकट नहीं की, या उसके ऊपर वो सोच नहीं रहे थे, अरे अब तो मैं जेल में हूँ, अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा, या बाहर में कैसे आ पाऊँगा। उन्होंने उसकी जरा भी चिंता नहीं की। उन्होंने अपनी समस्या प्रभु के हाथ में दे दी और प्रभु के सम्मुख उन्होंने स्तुति आराधना वो गीत गाने लगे। और हम देखते हैं बाइबल कहता है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया। जानना चाहेंगे?
हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, परमेश्वर ने भूकंप को लाया और वहाँ का जो जेल है वो हिलने लगा और सब जो जेल का दरवाजे बंद था वो खुल गए। पौल और सिलास की जो जंजीर बांधे हुए थे वो खुल गए और लोग उस दरवाजे से अपने अपने जेल के दरवाजे से भाग के एक कोठरी में जाकर छुप गए। अब यहाँ पर जेलर को जब पता चला और जब उसने देखा, अरे बंदीगृह का दरवाजा खुला है और एक भी कैदी नहीं है, अब उसे मालूम था कि क्या होगा। जो मालिक है, जो अधिकारी है, जब उसे ये बात पता लगेगी तो वो क्या करेगा, मुझे मार डालेगा। वो मुझे मारने से पहले मैं अपने आप को मारता हूँ करके उसने सोचा, उसने निर्णय लिया और उसने अपने कमान से तलवार निकाली और अपने आप को मारने गया। इतने में पौलुस ने आवाज दिया, ए जेलर रुक जा, ऐसे कुछ मत कर, क्योंकि हम सब यहाँ पे सुरक्षित है। जब उसने वो आवाज सुनी तो एक पल में वो एकदम स्तब्ध हो गया और उसने एक लैंप लिया और उस कोठरी में गया और जब वो कोठरी में गया तो उसने सब जेलर को वहाँ पर पाया और वो पौलुस के पैर के नीचे गिर पड़ा और उसे क्षमा मांगने लगा और उसने कहा कि हे गुरु, मुझे माफ़ करो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने उस परमेश्वर को देखा है, समझा है, जिस परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। मुझे बताओ मैं क्या करूं करके। हम देखते हैं मेरे बच्चों, उस दिन पौलुस और सिलास ने उस जेलर को यीशु मसीह के बारे में सब बातें बताई और वो जेलर अपने परिवार सहित सब बातें सुन रहा था और उसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके माना। इतना ही नहीं हुआ मेरे बच्चों, अगले दिन जो अधिकारी ने उस पौलुस और सिलास को जेल में डाली थी, परमेश्वर ने उनको मन में जाके बातें की, उनका विचार को बदल डाला और वो अधिकारी ने आके ऐलान किया कि पौल और सिलास को छोड़ दो। मेरे बच्चे, यहाँ पर अच्छी बात हमें देखने मिलती है। परमेश्वर ने उनका उपयोग उस जेलर के लिए किया ताकि वो जेलर पूरी तरह से मन फिराए और परमेश्वर यहोवा निसी है ये वो जान पाए। आगे क्या हुआ पता है? वो जेलर अपने परिवार समेत बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के राह पे चलना शुरू किया और वहाँ के जितने कैदी लोग हैं उन्होंने भी परमेश्वर की महिमा की। मेरे बच्चों, यदि आपको अपने लक्ष्य को पाना है, आज़ादी अंदर से पानी है, तो आपको अपने अंदर की हर एक जेल को तोड़ना है। अपने सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के नाम से यदि आप अपने प्रॉब्लम को अपने नज़र से हटाकर अपना नज़र परमेश्वर की ओर लगाएंगे, परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग खोलेगा, आपका वो रक्षक बनेगा, आपका वो ध्वज बनेगा, आपका वो झंडा बनेगा। हम देखते हैं हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, किधर ना किधर वो सारे जेल को हमने अपने अंदर रखे हैं जो हमें मालूम नहीं पड़ता। हम बाहर से लगते हम अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे जेल हमारे जीवन में है। तो क्या आप चाहते हैं कि वो जेल आपके अंदर से निकल जाए? क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं अपने उस हर्ट से, उस दुखी से, उस दुख का जो जेल है? या हो सकता है आपके अंदर नफरत का जेल है, हो सकता है आपके अंदर गुस्से का जेल है। क्या आप चाहते हो कि उस जेल से आपको आज़ाद होना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें बाइबल से परमेश्वर यही कहता है कि अपने सारे जो भी आपके अंदर जितने भी जेल है वो परमेश्वर के हाथ में दे दो और उसकी सिर्फ स्तुति आराधना करो, उसके गीत गाओ। परमेश्वर आपको अंदर से पूरी आपकी जेल को वो आज़ाद करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपके अंदर वो शांति देगा, वो शांति जो कोई हमें दे नहीं सकता है ना। मैंने शुरुआत में कहा था उस लड़की के अंदर भी एक भारी आत्मा थी जो वो निकल गई और उसने अपने आप को हल्का पाया।
ऐसे ही यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई बात होगी, हो सकता है कि आपको झूठ बोलने का आदत होगा, हो सकता है आपको चोरी करने की आदत होगी, हो सकता है कि आप बहानाबाजी बहाने वाली बातें बोलते होंगे। ऐसे अलग 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 एक हमने क्या किया है, एक जेल को हमारे जीवन में बंद कर रखा है। मेरे बच्चों, यदि आप चाहते हो कि आज आप इससे आज़ाद पाए, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु, आज जो कुछ हमने सीखा प्रभु, आज का हमारा विषय था यहोवा निसी, द लॉर्ड इज आवर बैनर। परमेश्वर मेरा झंडा, परमेश्वर मेरा ध्वज, परमेश्वर मेरा रक्षक। परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मेरे जो बच्चे आज ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं प्रभु, कहीं ना कहीं उनके जीवन में ऐसी कोई नफरत की बात उनके अंदर वो जेल बनकर बैठा हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इसी वक्त पिता परमेश्वर उन सारी बातों को, उस जेल को उनके अंदर से निकाल दो प्रभु, और उन्हें वो अनुभव आने दो कि आप उनका रक्षक है प्रभु। वो पीस, वो शांति उनके अंदर आने दीजिए प्रभु, और उन सारी बातों को उनके जीवन से आप निकाल दीजिए प्रभु। आपको मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी, और प्रभु उनके जीवन से इन सारे जेल को आपने निकाल दिया प्रभु। धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर आपने अपने आप को हल्का महसूस किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा कि आपके मन से, आपके सोच से, आपके विचार से ये सारी जेल निकल गई। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी ऐसी कुछ बातें हो जो आपके विरोध में होती होगी, जो सही नहीं होगी, लेकिन आप अपने अंदर इस जेल को आने मत देना, क्योंकि ये जेल आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा। उसी वक्त ये जान लो, जब आपके मन में आता है तो उसी वक्त कहना यहोवा निसी, यहोवा निसी, परमेश्वर मेरा ध्वज, परमेश्वर मेरा रक्षक। आमीन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सिस्टर हेमलता। एक बार मैं और मेरा दोस्त रोड क्रॉस कर रहे थे, अचानक वहां पर एक बाइक सिग्नल तोड़ के आया और उसने हमें ठोकर मारा। मेरा दोस्त जो था वो गिर गया और उसको बहुत चोट लगी। मैं भी बहुत बुरी तरह से गिरा, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है पता है, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। सब हैरान थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरा यहोवा निसी, उसने मुझे सुरक्षित रखा और बचा के रखा। अब समय है मेमोरी वर्ड्स का, और मेमोरी वर्ड्स सिखाने के लिए हमारे बीच है डेविड। डेविड हमें मेमोरी वर्ड्स तो सिखाएंगे ही, लेकिन साथ में भारत दर्शन भी कराएंगे। सो ओवर टू यू डेविड। हेलो गाइस, हियर आई एम अगेन, आपके आगे में आया हूँ। एज यू नो, माय नेम इज डेविड। सो आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ मेमोरी वर्ड्स का चैलेंज करने वाला हूँ। नॉट जस्ट अ चैलेंज नहीं, पर इट्स समथिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर एवरी डे। ओके, सो दिस चैलेंज हैज बीन टेकन फ्रॉम द बाइबल का एक बुक है जिसका नाम है अंग्रेजी में हिब्रू, नेपाली में बोलते हैं हिब्रू ही बोलते हैं, और हिंदी में इंटरेस्टिंगली इब्रानियों का किताब बोलते हैं। और इब्रानियों का किताब 13 का 5 से हम ये चैलेंज ले रहे हैं। पूरा वर्स को नहीं कर रहे हैं, पर एक लाइन जो हमको हमेशा याद करना है उसको हम कर रहे हैं। पर before moving forward to that, going over there, so let me read it to you. Okay, हिंदी में क्या लिखा है मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का 13:5। अपने जीवन को धन के लालच से मुक्त रखो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। ठीक है, दिस इज आवर वर्स। परमेश्वर ने हमसे कहा है ही विल नेवर लीव अस। ओके, सो आज के लिए हम वी आर जस्ट टेकिंग दैट लाइन, आई विल नेवर लीव यू, या तो मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा।
ओके, या मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज का एक्टिविटी बहुत मजेदार है और चैलेंजिंग भी है और डिफिकल्ट भी है कुछ लोगों के लिए, तो स्पेशली फॉर मी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर सम ऑफ द थिंग्स। ओके, पर आई नो यू गाइज आर वेरी स्मार्ट एंड मुंबई पीपल है, so you can do it better than me. Okay, so I'm just challenging you. So I'm just taking that line, I will never leave you, from the verse इब्रानियों का किताब 13:5 से ले रहे हैं, ठीक है। So before we do that, you have to remember ये कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। Do you have any idea who is talking to whom in this verse? Absolutely, it's God Himself who is talking to us, maybe to you. फर्स्ट चैलेंज है आपको करना है इंग्लिश में। एनीवन कैन डू इट इन इंग्लिश नाउअडेज ना, मुंबई का लोग तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपका हाथ को ऊपर में लेके जाना है और करना है आई, मेरे पीछे बोलना, ठीक है। आई विल नेवर लीव यू डेविड, आपका नाम बोलना है बाद में। फिर से ट्राई करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। 1 2 3 आई विल never leave you David. God is talking to me. He will never leave me, nor he will never forsake me. So दूसरा पार्ट को हम करेंगे, बहुत आसान वाला कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। Can you guess which one is very easier for you guys? Of course, that's Hindi. You know guys, you guys can speak Hindi much more better than us. So हिंदी में करेंगे हम सब लोग। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा डेविड। फिर से करेंगे 1 2 3 में, ठीक है, मेरे पीछे। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हु इज सेइंग इट? डोंट फॉरगेट दैट। कौन कह रहा है? परमेश्वर खुद आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अभी अंग्रेजी में किया और हिंदी में किया। अब थर्ड पार्ट जो मेरा पर्सनल, मेरा लैंग्वेज है। Can you guess which language I speak? Yes, I speak Nepali. धीरे से करेंगे, अभी थोड़ा मुश्किल होने वाला है लैंग्वेज। नेपाली में करेंगे, ठीक है। हाथ ऊपर। म तिमीलाई कहिले पनि छोड्दिन। फिर से करेंगे, थोड़ा मुश्किल होने वाला है ना आप लोगों के लिए। फिर से करेंगे, यू कैन डू इट। ओके, हाथ ऊपर। म तिमीलाई कहिले पनि छोड्दिन। That's right, you're doing it better. Okay, पहला हो गया अंग्रेजी में, हिंदी में, नेपाली में। Can you guess what is next? और ये तो बहुत ही आसान है, जो और आपके लिए तो हिंदी आसान था और हिंदी से भी आसान है। Can you guess which language is that? मराठी। अरे वाह, मराठी में नहीं करेगा तो ये कैंप का मतलब नहीं रहेगा ना। अरे भाव लोग, चलो मराठी में करेगा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मी तुला कथी नहीं सोडना। डू यू थिंक आई एम डूइंग बेटर? अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा तो जस्ट राइट इट इन कमेंट। ओके, यू कैन हेल्प मी आउट। ओके, मी तुला कथी नहीं सोडना डेविड। कौन कह रहा है? परमेश्वर। Yeah, that's right. That was our fourth language: English, Hindi, Nepali, and Marathi. So we are just moving forward to the difficult languages now. Okay. So the next language is from my state. Can you guess which is that? Any idea? Okay, and just the hint. I am from West Bengal. Of course, Bengali. Okay, let us do it in Bengali. Okay, Bengali में कहता है, हाथ ऊपर करना। आमी तोमाके कोनो दिन छाड़बो ना। फिर से ट्राई करेगा ना। आमी तोमाके कोनो दिन छाड़बो ना डेविड। परमेश्वर हमसे कह रहा है, ठीक है। अगर you are not being able to pick it up, then you can just play the activity again and listen it carefully and challenge yourself to say it in that language. Okay, are you ready to move ahead with another language?
So next language is Khashi. Let me ask you a question. पहले कभी सुना है खासी लैंग्वेज? कैन यू गेस कौन सा स्टेट में खासी लैंग्वेज बोलता है? एनी गेस? एनी गेस? यस. हैव यू एवर हर्ड अबाउट शिलोंग? या शिलोंग मेघालय में एक स्टेट है, मेघालय का एक कैपिटल है शिलोंग, जहाँ का लोग खासी लैंग्वेज में बात करते हैं. सो लेट अस ट्राई इन खासी. ओके, आर यू रेडी? Let's do it. Nyan, inno, ya, fi. फिर से ट्राई करेंगे. It's much difficult for me also. Nyan, inno, ya, fi. David. फिर से. Nyan, inno, ya, fi. David. So that was our language challenge for you. From the verse Hebrews 13:5. So आप लोग को क्या करना है? वीडियो को देखना है फिर से. You can repeat it the video if you are not been able to grab what I was saying. So practice करना है, challenge करना है अपने को. But more importantly, never forget who is saying that. I will never leave you. That is God saying to you. Even in this situation, He will never leave you. And thank you guys for listening to me and for being patient. Okay? Thank you guys. Bye-bye. थैंक यू वेरी मच डेविड. ये आज का आपका फर्स्ट चैलेंज है. मेमोरी वर्ड्स को अलग अलग भाषा में सीखिए, फटाफट वीडियो बनाइए और हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शाम 6 बजे तक भेजिए. बेस्ट 5 वीडियोस को हम सिलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से मिलेंगे स्पेशल गिफ्ट. रात 10 बजे हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज पर उनका अनाउंसमेंट होगा. सो बच्चों, फटाफट एक क्रिएटिव वीडियो बनाइए. हमारे अगले सेगमेंट के लिए मैं समय दूंगा रेवरेंड जोशी को. इनको हम प्यार से जोशी अंकल भी कहते हैं. जोशी अंकल के पास बच्चे और माँ बाप के साथ में काम करने का 30 साल से भी ज्यादा तजुर्बा है और उनके पास एक स्पेशल संदेश है बच्चों आपके लिए और आपके मम्मी डैडी के लिए. तो ये सेगमेंट आप अकेले मत देखिए, आप अपने मम्मी पापा को आपके साथ में बिठाइए और उनके साथ में देखिए. सो ओवर टू यू जोशी अंकल. मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मिलने मैं आया हूं और मुझे आनंद होता है कि आपने बाइबल कैंप, चिल्ड्रन बाइबल कैंप में शामिल हुआ है और मुझे विश्वास है कि आपने बहुत कुछ अच्छी बातों को पहचाना है, समझा है और विशेष करके जिस तरह से आपने गीत सीखा है उसको क्रिया के साथ किया है और जिस तरह से आप एक दूसरे को आनंद देते हैं इस कैंप के दौरान, ये बहुत ही एक बड़ा आशीर्वाद है परमेश्वर का आपके जीवन में. आज मैं विश्वास करता हूँ कि काफ़ी माता पिता भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं. चिल्ड्रन बाइबल कैंप जब भी होता है, हम ख़त्म होने से पहले हर पार्टिसिपेंट या जो इसमें हिस्सा लेते हैं उनको अवसर देते हैं कि वो अपने परेशानी को प्रभु के सामने रखे और प्रभु के साथ बातें करें अपने समस्या के बारे में. और ख़ास करके हम बातें करने के लिए उनको हमारे स्वयं सेवक जो काउंसलर्स होते हैं, जिसको हम प्रशिक्षित किया है, जो बच्चों को सही से उनके समस्या को समझे और उनको समझाए कि कैसे मार्गदर्शन के द्वारा वो अपने जीवन में यश पाए. हमने बहुत से बच्चों को बोलते हुए देखा है कि उनके छोटे छोटे परेशानी जो है कभी कभी उनको भयभीत करता है, उनके भविष्य के बारे में उनको चिंता रहता है.
और ख़ास करके जब उनको परेशान करने वाले बदमाशी जो है उनको छेड़ते हैं, उनसे कैसे, उनके चंगुल से कैसे बाहर निकले और उनका जो प्रभाव जो है उनके मन में और उनके दिल में किस तरह का काम करता है और वो बहुत ही खिन्न हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे यूँ भी आकर हम कहते हैं कि उनको उनके जो मित्रगण होते हैं वो ज़्यादातर उनसे जब भी उनका काम होता है उनके साथ बातचीत करते हैं, फिर बाद में जो है उनसे रूठ जाते हैं। मित्रता किस तरह से बढ़ाना है और उसको मजबूत करना है, ये बच्चों का चिंता है। और कभी कभी बच्चे हमसे ये भी बताते हैं कि उनको किसी के दबाव के आने पर गलत काम भी करते हैं और गलत काम का शिकार भी हो चुके हैं। तो ऐसे वातावरण में उनको विशेषज्ञ के साथ मिलाकर उनसे हर परेशानी को दूर करने का एक प्रयास है बच्चों के साथ। मैंने मेरे अनुभव में देखा है कि बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी हमसे बातें करना चाहते हैं जब उनको लगता है कि उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं होता है। कभी कभी बच्चों का शहद अच्छा है लेकिन उनका हरकतें जो है काफ़ी दुखदाई होती है, क्योंकि वो हर बार गुस्सा करते हैं, रूठ जाते हैं और बिना कारण आक्रामित भी हो जाते हैं बच्चे। कभी कभी बच्चे अपने आप में अलग हो जाते हैं, दूसरों के साथ मिलते नहीं और जो भी कार्यकलाप होना है उस कार्यकलाप में वो भाग नहीं लेते हैं। और हमने ये भी सुना है कि माँ बाप से कि कभी कभी बच्चे बेड वेटिंग करते हैं और उसके लिए कितने भी दवाई करो तो वो छूट नहीं जाता है। ऐसे वातावरण में हमने देखा है कि काउंसलिंग के द्वारा या सलाह देने से उनका जो भी चिंता है उसको दूर करने से वो बहुत ही एक नए सिरे के साथ वो जीना शुरू करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि ये कैंप के से जो भी बच्चों ने सीखा है और जो नए निर्णय लेकर उनको आगे चलना है, उनको आगे जो भी मार्गदर्शन लगेगा उसके लिए हमारे काउंसलर्स उनके साथ बातें करेंगे और उनके साथ प्रार्थना करेंगे। और हमने देखा है कि प्रार्थना का बल बहुत से बड़े बड़े परेशानी बच्चों में से दूर हुआ है। और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे से बातें करने के लिए आप नीचे दिया हुआ जो लिंक है उसमें आपका जानकारी दे दीजिए। हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे जिससे कि हम आपके साथ अच्छी तरह से बात कर पाए और आपका जो भी ज़रूरतमंद चिंता है या समस्या है उसके लिए हम हल ढूंढ कर निकालेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इस कैंप के दौरान आपको एक नया वातावरण भी मिला है आपके बच्चों के लिए और उनको मार्गदर्शन देने के लिए हम कभी भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे कैंप में भाग लिया और हमारे ये जो संगति है इससे हम बच्चों में परमेश्वर का परिचय, बच्चे परमेश्वर के राहों में चलेंगे और आगे बढ़ के बच्चे हमारे देश के एक अच्छे नागरिक भी बने। ये हमारा प्रार्थना है और यही हमारा प्रयास है और हम ज़रूर आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप में से कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए स्पेशल हेल्प चाहिए या काउंसलिंग चाहिए तो हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए और सबमिट कीजिए। हमारे एक्सपर्ट टीम ऑफ काउंसलर्स आपको संपर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच जोशी अंकल। अब मैं आपको आज का दूसरा चैलेंज बताऊंगा। डे 1 में डेविड ने हमें एक गाना सिखाया था, ही इज माई रॉक माई सोर्ड माई शील्ड। ये गाने को आप फिर से देखिए, सीखिए और एक मजेदार वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शाम 6 बजे तक भेजिए। बेस्ट 5
को हम सिलेक्ट करेंगे और गिफ्ट देंगे। अनाउंसमेंट होगा रात 10 बजे हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज पर। सो बच्चों, एक बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। चलो सीधू बेस अरे हल हल नहीं એટલું સ્પીડ માં તો ફટાક દઈને નીચે જ જતું રહે એને હવે ધીમે ધીમે સ્લો લઈ જવાનું સ્લો આંખોથી આપણે ચામડી હલાઈને લઈ જવાનું એને બસ એકદમ ચામડી રહે ચામડી ધીમે ઉતાર નહીં એ હાથ અરે બોલ स्लोली घे तू करू शकतोस हळू हळू स्लोली नाकावर घे नाकावरती घे तू सगळं व्यवस्थित आहे आता आतनं जीभ काढ बाहेर जीभने ते आतनं बाहेर वर उचल आत तू हळू हळू माड बघ नकोस हळू हळू घे त्याला बाहेर अजून जरा हला आता आत घे हलवू नको गडबड करू नको आले घे आत घे Good, hold up, good, good, very good.
do it. You can do it. Oh, it fell down. Do it again. आज का समय समाप्त होता है। ये समय है अलविदा कहने का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। अगर आपको आज का दिन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ हमारे इस VBS का लिंक, इस कैंप का लिंक। तो बच्चों, सी यू टुमारो।